بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ اور یہ ایک مہم ہے گھر گھر بغیر کسی اہتمام اور خرچے اور ناشتے پانی کھانے نذرانے کے گھر گھر محفل میلاد سجانے کی، اور آج آپ کے گھر یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اور دیکھیں، دین اسلام کی باتیں سیکھنا، اپنے دین اور مذہب کے بارے میں جاننا نہایت ضروری کام ہے۔ اور اس دور پرفتن میں جب لوگ مذہب اسلام پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوں اور خود اس کے مذہب کے جاننے والے اگر اپنے مذہب کے بارے میں نہ جانیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ کم سے کم خود اپنے دین اور مذہب کے بارے میں سیکھیں، جانیں، سمجھیں اور اپنی نسلوں کو بتائیں۔ یہ واحد ایسا مذہب اس روئے زمین پہ موجود ہے جس کی بنیاد انسانی فکروں پر نہیں، یعنی انسانوں نے اپنی عقل سے یہ مذہب نہیں گڑھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کی زبان میں کہ یہ آسمانی مذہب ہے۔ آسمانی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے احکام نازل کیے گئے، اور اللہ نے اپنے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے احکامات، یعنی اس کے رول ریگولیشن، نماز کا طریقہ اور جو بھی ہم اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ کسی انسان کے عقل کی پیداوار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر وحی کے ذریعے نازل کی۔ یہ اس مذہب کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں وہ انسانی عقلوں پر بیسڈ ہیں، یعنی انسان نے اپنی عقلوں سے گڑھا ہے، یا اگر ان کی بنیادیں آسمانی تعلیمات پر ہیں بھی، جیسے کرسچینٹی، یعنی کرسچین لوگ، عیسائی جنہیں ہم اپنی زبان میں کہہ لیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں، انجیل کو اور توریت اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر بھی وہ ویسی کی ویسی کتاب کو نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق اس میں رد و بدل کر لیا۔ ان کے وہاں لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں کہ چلو شراب تھوڑا سا پی لیں گے، چلو بغیر نکاح کے بھی چلے گا۔ لیکن دین اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو جوں کا توں اپنی اصل صورت پر باقی ہے، یعنی اس میں کوئی تحریف اور کوئی بدلاؤ آج تک کسی نے نہیں کیا، نہ قیامت تک اس میں کوئی بدلاؤ کیا جائے۔ تو یہ بہت عظیم نعمت ہے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت اور بغیر کسی مشقت کے ہمیں دے دی۔ آپ جا کے صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھیں، انہوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی۔ حضرت علی جب ایمان لائے تو یہ بابو 10 سال کے اگر ہیں، یہ تو 10 سال کی عمر تھی حضرت علی، اور لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، لوگوں نے، گھر والوں نے بائیکاٹ کیا، خود حضرت علی کے والد ابو طالب یہ ایمان نہیں لائے، تو بڑی بڑی مصیبتیں انہیں جھیلنی پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر، ان کا جو غلام تھے حضرت بلال، تو گرم ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر بڑا سا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ اپنے مذہب سے پھر جاؤ۔ ٹھیک ہے، آج دنیا والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، آج ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہماری درگاہیں توڑی جا رہی ہیں، لیکن کوئی آپ کے گھر میں آ کے تو آپ سے نہیں کہتا کہ اپنے مذہب سے پھرو، کوئی آپ کو نہیں روکتا کہ آپ نماز کی پابندی کیجیے، جو مسجدیں سلامت ہیں آپ ان کو آباد کیجیے، کوئی آپ کو اس بات سے نہیں روکتا ہے نا۔ تو ہمیں اس مذہب کی قدر اور قیمت سمجھنی چاہیے اور نہایت طور پہ اپنے مذہب سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس میں دنیا کی بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت کی بھی بھلائیاں ہیں۔ جیسے آپ پہلے آخرت کی باتیں سن لیں اور عبادت کے بارے میں سمجھ لیں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہماری صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھ لیں اور عید میں نئے کپڑے پہن لیں، یہ نہیں کہ شب برات آئی تو چلو تھوڑا سا فاتحہ کرا لیا، گھر سجا لیا، موم بتی جلا لی جا کے قبرستان میں، صرف اتنی ذمہ داری مسلمان کی بنتی نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ذمہ داری مسلمان کی ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے، وہ کہیں بھی ہو وہ نمازی ہونا چاہیے، عملی طور پہ، پریکٹیکلی طور پہ۔ اب یہ نہیں کہ چلے جناب اب
बाजार में थे तो नहीं पढ़ा, तो आज दावत में गए थे तो नहीं पढ़ा, हमारी भाई बहनें शादी ब्याह मैरिज हाउस में चले गए तो नमाजें छोड़ दी। ऐसे नहीं, सच्चे पक्के नमाजी बनिए और नमाज की ही बदौलत लोग दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं। हिंदुस्तान की जो साहिली इलाका है समंदरी, केरल वगैरह में, वहाँ पे ही सबसे पहले लोग मुसलमान हुए और हिंदुस्तान के केरल के लोग सबसे पहले मुसलमान हुए। और आप देखें, लोग कहते हैं ना मुसलमान जाहिल होते हैं, आज केरला में ही सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी है, 99 पॉइंट समथिंग वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यानी 100 में से 99 लोग वहाँ पढ़े लिखे होते हैं, है ना। ये दीन इस्लाम की बरकत है। आप जाके देखें वहाँ के मुसलमान कितने टॉप क्लास के पढ़े लिखे होते हैं। अब ये बात अलग है कि ये इस्लाम तो हमेशा तालीम को प्रमोट किया है, दीन इस्लाम चाहता है कि हम पढ़े लिखे हों, सूझबूझ वाले लोग हों, लेकिन हम ही अपनी काहली की बुनियाद पे वो जाहिल रह जाते हैं। दीन इस्लाम ऐसा नहीं चाहता। तो बहरहाल मैं बता ये रहा था कि आप देखें कि केरला का साहिली इलाका था और सहाबा वहाँ पे आए थे कपड़ा बेचने, क्या करने, कपड़े बेचने, तिजारत करते थे कपड़ों की। तो आए थे वो कपड़ा बेच, अगर मुमकिन हो तो आप लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर लें, थोड़ा 40 मिनट आधे घंटे के बाद। तो आए थे वो कपड़ा बेचने। अब जब वो कपड़ा बेचते थे तो उनका किरदार इतना अच्छा था कि जब किसी को कपड़ा बेचना होता तो लोग अपने कपड़े का ऐब छुपाते हैं, है ना। लेकिन जैसे मान लें यहाँ थोड़ी सी सिलाई खुली हुई है, तो जब वो अपना कपड़ा बेचते थे तो वो दिखाते थे कि देखो तुम ले तो रहे हो लेकिन मेरे कपड़े में ये बुराई है, यानी ये ऐब है। सारी अच्छाइयाँ अपनी जगह, अच्छाइयाँ भी बताते थे, कहते थे ये ऐब है। और उसके बाद जब नमाज का वक्त होता था तो एक साहबी खड़े होते और अजान देते और सारे उनके पीछे सफ़े बांध के नमाज में मशगूल हो जाते। तो जब गैर मुस्लिम जो लोग दीन इस्लाम में दाखिल नहीं तो उन्होंने ये मंजर देखा तो वो हैरत ज़दा रह गए, क्या इंसान इतना ईमानदार भी हो सकता है कि वो अपने ही माल का ऐब बता रहा है, या ये कौन सा काम फरिश्तों वाला ये करते हैं कि नमाज का वक्त होता है तो कुछ कान में उंगली डाल के पढ़ते हैं, फिर यूं यूं नमाजें पढ़ रहे हैं। तो लोग उनसे पूछते थे ये आप करते क्या हैं, तो बताते थे ये हमारे नबी की तालीम है कि धोखा देने वाला, फरमाया गया मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं। यानी मुसलमानों का तरीका नहीं होता है धोखा दे के 4 पैसे कमा लेना, किसी से झूठ बोल के उसका माल गसब कर लेना, उसकी ज़मीन जायदाद दौलत गसब कर लेना। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो प्रॉफिट, हमारे पैगंबर हैं, उनकी ये तालीम है कि धोखा देना ये मुसलमानों का तरीका नहीं। और जब मैं छोटा था तो मुझे याद है मैंने एक मौलाना साहब से पूछा था क्या गैर मुस्लिम को धोखा दे सकते हैं, तो उन्होंने बताया किसी को भी धोखा देना दीन इस्लाम में जायज़ नहीं, छोटा मोटा धोखा भी नहीं। जैसे बच्चे, उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था, तो बच्चे जो है वो स्कूल में रहते हैं तो अपने दोस्तों से धोखेबाजी करके उनकी पेंसिलें ले ली, उनकी अच्छी खूबसूरत पेन ले ली, है ना। तो ऐसा होता है 2-4-10 रुपए के लिए कुछ कर लिया, छोटे हैं तो इनके गुनाह भी छोटे होते हैं। लेकिन बहरहाल हमें पहली बात किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी ने एक बड़ी तादाद को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब कर दिया, है ना। आप कहीं भी रहें हमेशा नमाज की पाबंदी करें, आप सफ़र में हो, अपने घर में हो, कहीं मेहमानी में जाएं, कहीं शादी ब्याह में जाएं, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। जैसे आप मसलन कोई कारोबार करते हैं, आप नमाज़ें नहीं पढ़ते, आप थोड़ा सा कारोबार नमाज के वक्त मौकूफ़ करके आप नमाज़ों की तरफ आइए। जब ज़ोहर के 15 से 20 मिनट लगते होंगे पूरी नमाज़ पढ़ने में, बहुत मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, वज़ू वगैरह लेकर आप दुकानदार हैं, ठीक है 15-20 मिनट के लिए दुकान बंद कर दीजिए। आप सोचें अगर आपके घर पे कोई उफ्ताद और मुसीबत आ जाए तो इंसान कई कई दिन दुकानें बंद कर देता। और आपको मालूम नहीं है जिस तरह से नेकियों की बरकत होती है उसी तरह गुनाह की नहुसत भी होती है। कभी कभी हमारे घरों में जो बेबरकती होती है, लोग परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, कभी कभी बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, हम क्या क्या नहीं करते, ये दुआ ताबीज़ लटकाना फटकाना क्या क्या नहीं करते। लेकिन हमें अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी। नमाज़ें पढ़िए, नमाज़ों की खूब पाबंदी कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो जिसकी एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई गोया उसके अहल व माल जाते रहे, यानी उसकी नमाज कज़ा होने का मतलब गोया उसके घर का कोई मर गया या फिर उसके माल का नुकसान हो गया। अगर कभी गलती से नमाज छूट जाए तो हमारे दिल में नदामत होनी चाहिए, शर्मिंदगी और तौबा होनी चाहिए। अब तो मुसलमान इतने दिलेर हैं कि अजानें होती रहती है वो घूमते टहलते रहते हैं, मस्जिद के बगल में लोगों की दुकानें हैं वो नमाजें नहीं पढ़ रहे होते हैं, है ना। मस्जिद के सामने बच्चे खेल रहे होते हैं, वो खेल ही में मगन होते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ रहे होते। अब वजह यह है कि जब बड़े नहीं पढ़ते तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकली मुसलमान बनाने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं बनाते हैं अपने आप को प्रैक्टिकली मुसलमान तो फिर रोने धोने से मसाइल हल नहीं होते।
जो मुसीबतें हैं, अगर आप अपने आप को बदलने के लिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हम उस कौम के हालत नहीं बदलते जब तक खुद वो अपनी हालत को नहीं तब्दील करते। यानी ऐसा नहीं होने वाला कि आप फजर के बाद 10-10 बजे तक सोते रहें और कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए कि हुकूमत मुसलमानों की हो जाए। ऐसा हो कि आप अपने मगन में मस्त हैं, शादी ब्याह आपके वहाँ नाच गाने के साथ हो रही है और कोई बहुत बड़ी बरकत का ज़हूर हो जाए कि मुसलमानों पे से सारी मुसीबत हट जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बरकत देगा, मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी बरकत नहीं आएगी। ये कुदरत का कानून है न। अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना शरीफ आए तो जो मक्का के लोग थे, दुश्मनाने इस्लाम, उन्होंने क्या किया, वो मदीने की तरफ आ गए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लड़ने के लिए मैदान जंग में आ गए। अब जाहिर सी बात है मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी, 300 के करीब मुसलमान थे। आप बताएं हमसे ज्यादा नबी की दुआ कबूल होती कि नहीं होती? नबी कह देते जंग टल जाए, अल्लाह टाल देता। हमारा तो ये अकीदा, नबी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, है ना। वो नबी हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। फिर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर में बैठ के दुआ नहीं की, बल्कि मैदान जंग में गए। और जंग बद्र आपने नाम सुना, इस्लाम की पहली जंग है जंग बद्र। और मैदान में जाके दुआ की कि या अल्लाह इस वक्त जमीन पे यही 313 हैं जो तेरा नाम लेते हैं। अगर आज ये शहीद कर दिए गए और ये हार गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं हो। कहाँ जाके दुआ की नबी ने? मैदान जंग में, घर में बैठ के नहीं की। तो इसी तरह आपको भी कम से कम, वो किसी बच्चे ने लिखा था, तहरीक का ही बच्चा है, उसने फेसबुक पे आज लिखा था कि इस ठंडी के मौसम में कश्मीर, लद्दाख और मनाली जाना आसान है, लेकिन मस्जिद जाना मुश्किल है। आप सोचें, लोग टूर कर रहे हैं, घूम रहे हैं लोग, है ना, लोग ये ठंडी के मौसम के मजे लूट रहे हैं, लेकिन घर से उठ के मस्जिद तक नहीं जा पा। गोया हमारा शौक मजबूत हो गया और हमारा ईमान कमजोर हो गया। तो हमें अपने ईमान की फिक्र होनी चाहिए और हमें अपने ईमान के बारे में सोचना चाहिए। और बैठ जाइए, बच्चे को लेकर बैठ जाइए, एक बात दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना तो आपके हालात कैसे बदलेंगे कि हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। जैसे हम अपने शौक के लिए, आपकी सुबह किसी को जाना और ट्रेन हो तो फिर वो चला नहीं जाता उठ के, बिल्कुल चला जाता है, लेकिन हमसे अल्लाह की फर्मा बरदारी में सुबह फजर की नमाजें नहीं पढ़ी जाती, अल्लाह की फर्मा बरदारी में हमसे मस्जिदों तक नहीं जाया जाता। और याद रखें, जब तक मुसलमान अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, चीखने चिल्लाने रोने बिलखने से उनके मसाइल हल नहीं हों, है ना। दीन इस्लाम का साफ साफ कहना है कि अगर तुम अपनी हालत नहीं बदलोगे तो अल्लाह ताला तुम पे रहम नहीं फरमाए। अगर आज तक आप बेनमाजी थे तो आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कीजिए और नमाजों की पाबंदी कीजिए। अगर आज तक आप मस्जिद नहीं जा पाते थे तो आप अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए और मस्जिदों की तरफ जाइए। और दीन इस्लाम कितना बेहतरीन निज़ाम देता है। दुनिया कहती है ना, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन आप सोचें कि मसलन कोई चोर हो बहुत बड़ा, है ना, और वो अपनी चोरी से अच्छाई की तरफ भी आ जाए तो दुनिया वाले हमेशा उसको ताना देते रहते हैं, अरे हमें पता है कितना बड़ा नमाजी पहले चोरी करता है। लेकिन दीन इस्लाम कहता है कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। आपके नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमल ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और फरमाया जाता है अगर कोई बेनमाजी नमाजी हो जाए तो उसको बेनमाजी के दौर की यादें न दिलाओ, ये गुनाह का काम है। आपको मालूम, किसी चोर ने तौबा कर ली, अब आप उसको कहते हैं कि तुम चोरी करते थे पहले, ये बुरा काम है। जिस गुनाह से किसी ने तौबा कर ली है उसका जिक्र नहीं किया जाता, है ना, यह अखलाकी जुर्म है। अगर आप करते हैं तो आप गुनाहगार होंगे। दीन इस्लाम नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। तो अगरचे आपने अभी तक गफलत वाली ज़िंदगी गुजारी है और अगरचे हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन तौबा का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ। और अगर आपको वही पुरानी घिसी पिटी ज़िंदगी चाहिए और वैसे ही हम जीना चाहते हैं जैसे पहले जीते थे, तो ठीक है, आप सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दीजिए और आप एक दिन इस दुनिया से भी चले जाएंगे और आपके मसाइल हल नहीं होंगे। फिर जो आपका किया धरा आपकी औलादें भुगतेंगी। आज अगर मुसलमान होश में नहीं आए तो फिर हमारा किया धरा हमारी औलादें भुगतेंगी, यही होगा नतीजा। फिर औलादें माँ बाप को गाली देते हुए नजर आएंगी, अरे हमारे बड़ों ने कुछ नहीं किया। तो अपने हालात को बदलें, थोड़ा सा शऊर वाला जहन पैदा करें अपने अंदर और नमाजों की पाबंदी निहायत तौर पे करें, है ना। ये आपको बुराइयों से रोकती है। नमाज में बहुत सारी बरकतें हैं, ये बताने की चीज़ नहीं है। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ नज़र आएंगी।
खुद ब खुद उसकी बरकतें आपको ज़िंदगी में नज़र आएंगी। तो अगरचे आज तक नमाजें नहीं पढ़ी, अगरचे आज तक हमने तौबा नहीं किया, अगरचे आज तक हम मस्जिद नहीं गए, हमारी माएँ बहन, और नमाजी मतलब नमाजी होता है, ये नहीं कि वक्त मिला तो पढ़ लिया, पता चला शादी ब्याह में गए तो नहीं, पहली फिक्र आपकी नमाज की होनी चाहिए। ये बुरी बात है। एक औरत का वाक़या है, मैं आपको बता देता हूँ। एक औरत थी, तो मेरी वालदा बताती हैं कि उसने पहले वज़ू किया, फिर उसके बाद मेकअप करने लगी। मैं मेकअप का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको उसकी सोच देखिए, वो नमाजी तो थी, कम से कम एक अच्छाई उसके अंदर थी। आप अच्छाई पे तवज्जो कीजिएगा। वो उसने वज़ू किया मगरिब के बाद, अभी ऐशा का वक्त नहीं हुआ, और वज़ू करने के बाद उसने क्या कर लिया, मेकअप कर लिया। तो लोगों ने उससे पूछा कि वज़ू क्यों किया, अभी तो नमाज का टाइम नहीं हुआ। तो उसने कहा वज़ू कर लें, अभी टाइम होगा तो नमाज पढ़ के तब हम शादी में जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, शादी में जाएंगे। अब उसने अपने उस वक्त का भी ख्याल रख लिया कि पहले ही वज़ू करके अपनी तैयारी वगैरह कर ली, उसके बाद नमाज का वक्त हुआ तो नमाज पढ़ के फिर उसके बाद शादी ब्याह में गए। थोड़ा सा शऊर से काम लीजिए, आपका कुछ नहीं जाता है ना। अब जैसे आज 7:30 बजे नमाज हो रही, आप नमाज पढ़ के शादियों में जाएंगे तो कौन सा आपको खाना नहीं मिलेगा। और शादी में जाने, दावत में जाने का मकसद वहाँ नाच गाना करना थोड़ी ना है जनाब। आप खूब मज़े ले लीजिए। मसलन आप एक शादी में गए, या हमारी माएँ बहनें एक शादी में गई, चलें खूब मज़े ले लिए, खूब इंटरटेनमेंट कर लिया, लेकिन आपको खाना ना मिले तो आप क्या करेंगे, गाली देते हुए निकलते हैं लोग, जब नई हैसियत थी तो बुलाया क्यों। असल मकसद दावत का ये है कि जिसने दावत दी है उससे मुलाकात की जाए, उसके लिए दुआएं की जाए, और जो उसने एहतमाम किया अल्लाह का शुक्र करके उसे खा लिया जाए। इतना सा मकसद है दावत। लेकिन हमने इतने रस्म रिवाज में हम फंस चुके हैं कि हमारी नमाजें भी छिन गई, हमारे तकवे भी छिन गए, और सब कुछ हमसे ले लिया गया। तो नमाजों की निहायत तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे आप पाबंदी करें। यानी फजर में पढ़ना है तो खुद ब खुद आपकी आँख, ऐसा आदत, आपकी नौकरी लग जाए ना, अभी जहाँ आपको 6 बजे सुबह जाना हो तो आपकी आँख रोज़ सुबह खुल जाएगी, है ना। हम नमाज को अहमियत नहीं देते। और फिर आप बताएं, ये तो मेराज शरीफ, रजब का महीना है, इसमें मेराज शरीफ का वाक़या पेश आया था, और नबी पाक सल्लम अल्लाह की बारगाह में गए थे तो वहाँ से नमाज का तोहफ़ा मिला था। अब आप बताएं, अल्लाह के दिए गए तोहफ़े की आप बेहुरमती करेंगे तो आपके ज़िंदगी में बरकतें कहाँ से आएंगी। तो नमाजों की पाबंदी करें, और अल्लाह का जितना फरमान है उसका ख्याल रखें। इसको करने का एक अमली और प्रैक्टिकल तरीका ये है कि हमेशा अपने जहन में ये बात रखें कि अल्लाह हमें देख रहा है। मसलन ये भाई हैं, बाबू हैं, अब ये हमें नहीं देख रहे, इनका सामान यहाँ रखा है, हमने इस्तेमाल कर लिया, तो हमारे दिल में अगर ये अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है तो हम इनका सामान बगैर पूछे इस्तेमाल नहीं करें। अब आप सोचें, घरों में लड़ाइयाँ, छोटे भाई बहनों में लड़ाइयाँ होती इसलिए कि मेरा सामान क्यों ले लिया, ये क्यों कर लिया। मैंने देखा, एक बताते हैं, एक मौलाना है, मौलाना इंतकाल कर गए, मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब, वो आए हुए थे गोरखपुर। तो एक मुफ्ती साहब है आपके शहर के, काजी मुफ्ती अजहर शमसी साहब, तो उन्होंने एक चप्पल उन्हें उठा के दी। तो उन्होंने पूछा ये किसकी चप्पल। देखिए मुसलमान होता कैसा है, आप थोड़ा सा तवज्जो करें। ऐसा नहीं कि जो मिला अपने दामन में भर लिया। तो उनको जाना था इस्तिंजा खाना, तो उन्होंने चप्पल उठा के दी। तो उन्होंने पूछा कि ये चप्पल किसकी है। तो मुफ्ती साहब जो थे उन्होंने बताया मेरे दोस्त की। कहा वो कहाँ हैं, कहा वो सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपने उनसे इजाज़त ली है। कहा नहीं, इजाज़त नहीं ली। फरमाया इसको रख दीजिए, मैं इसको पहन के नहीं लूँगा, है ना। ये होता है मुसलमान का मतमह नज़र। हमेशा वो इस बात की फ़िक्र करता है कि किसी का हक दब ना जाए, किसी की हक तलफी ना मुझसे हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मुझसे कोई गलती हो जाए कि क़यामत में मेरी पकड़। और आप ऐसी ज़िंदगी बिता के देखें कितनी बरकतें आपकी ज़िंदगी में आती है ना। ऐसी ज़िंदगी बिता के देखें। और दूसरी बात, अपनी इबादतें अच्छी रखें। रमज़ान का महीना आ रहा है, उसमें रोज़े रखें, और रोज़े आमतौर पे छोड़ देते हैं लोग, ऐसा कतन ना करें। फरमाया गया जो एक रोज़ा जानबूझकर तोड़ देता है, अगर सारी ज़िंदगी भी वो रोज़े से रहे तो उसे एक रोज़े का बदला नहीं हो सकता। आप सोचें, रोज़ा रहें, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूमू तसीहू, तुम रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओ, है ना। छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा मत छोड़ें। हाँ, कोई ऐसी बीमारी है जैसे बच्चियाँ हामिला हैं, या फिर उसके बाद कोई बड़ी बीमारी है, जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको दवाएं वगैरह खानी होती है, तो डॉक्टर से मशवरा कर लें कि सहरी और अफ्तार में खा लें, है ना। लेकिन कोशिश करें कि रोज़ा छोड़ना पड़े। बिलखुसूस नौजवान, ये बाबू हैं, आप लोग हैं, आप लोग तो अभी रोज़ा रह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अब वो अम्मा है, वो बैठी थोड़ी कमज़ोर है, हो सकता है कोई मुसीबत परेशानी हो, लेकिन अगर वो भी रहें तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तौफीक दे दे। हमने बिस्तर पे लेटे हुए लोगों को रोज़ा रख के देखा,
है ना। बाकी अल्लाह ने तो हमें नेमतें दी, सब सेहतयाब लोग, है ना, किसी में ज़ाहिरी तौर पे हमारे बदन सलामत है, तो हमें रोज़े रखने चाहिए। और दूसरी बात ये कि मखलूक के साथ अपना रवैया अच्छा रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ रहम करने वाले ही जन्नत में जाएंगे, यानी जो एक दूसरे के साथ रहम नहीं करेगा, नरमी नहीं करेगा, अच्छा सलूक नहीं करेगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। पता चला कि छोटे भाई अपनी बहन से लड़ रहे हैं, बहनें छोटे भाइयों से लड़ रही हैं, माँ बाप अपने बच्चों को पीट रहे हैं, और बच्चे तो अब तो वो दौर आ गया कि बच्चे माज़अल्लाह अपने माँ बाप को पीट, वो दौर आ गया। लेकिन हमारे नबी ने औलाद की परवरिश कैसे की है आप देखें। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी की बेटी हैं, जब आप आती थी ना तो नबी अपनी जगह से उठ जाते थे, अपनी जगह से उठते, उनका माथा चूमते और फिर उनको अपनी जगह, अपनी चादर बिछाते और उनको अपनी जगह पे बिठाते। अब बताएं, कोई बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करेगा तो उसकी बेटी कभी बाप की बात काटेगी? कभी नहीं काटेगी। लेकिन थोड़ा हमें भी तो अपना किरदार अच्छा करना है ना, हम बड़े हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी बड़ी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो किया है वो कमाल की बात है ना। वो तो नबी ने अपनी बेटी के लिए नबी उठे हैं, और आज का दौर ये है कि बड़ों के लिए छोटे नहीं उठते, है ना, बच्चे बाप के लिए नहीं उठते। अच्छा देखें, इस बात की फिक्र ना करें कि मेरा बेटा बड़ा बदतमीज़ है, आप छोड़ दें उसको अपने हाल पे, आप अपनी फिक्र करें। आपका बेटा बेनमाजी है, ठीक है, आप अपने आप को देखेंगे, आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। आपका बेटा कस के चिल्ला के बोलते हैं, उसे समझाएं, कोशिश करते रहें, लेकिन थोड़ा अपना रवैया भी संभालें। ऐसा ना हो कि बेटे की आंख जब सुबह खुले तो देखे अम्मा अब्बा आपस में लड़ रहे हैं। अब बताएं वो क्या सीखेगा। एक बार मोबाइल चलाते हैं ना बच्चे, ये लोग बहुत बहुत हंस रहे हैं जनाब, लग रहा है बदतमीजी ज़्यादा करते हैं। तो मोबाइल चलाते होंगे ये लोग, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मोबाइल, है ना, कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। तो एक बार एक वालिद ने क्या किया कि एक तरफ मोबाइल रख दिया और एक तरफ किताब रख दी। वो देखना चाहते थे ना वो वालिद साहब कि मतलब बच्चा मोबाइल की तरफ जाता है कि किताब की तरफ जाता है। अब बच्चे को वहां छोड़ दिया, अब बच्चा दौड़ते हुए आया और अपने अब्बा से चिमट गया। यानी नेचुरली तौर पे ना बच्चे मोबाइल की तरफ जाते हैं ना किताबों की तरफ जाते हैं। आप अगर उन्हें अच्छी आदतें सिखाएंगे तो वो अच्छा करेंगे। अब बाप खुद बच्चे के सामने मोबाइल चला रहा होगा, अम्मा खुद मोबाइल में लगी होंगी। बल्कि हम लोग तो ये भी गुजारिश करते हैं माँ बाप से कि आप अपने बच्चों के सामने बहुत देर तक मोबाइल पे बात भी ना किया करें। जैसे हमारी घर की खवातीन होती हैं, वो अपनी बहनों वगैरह से बड़ी लंबी लंबी गुफ्तगुएं होती हैं, है ना, अपने बच्चों के सामने ऐसा ना किया करें, है ना। अगर ज़रूरी बात तो थोड़ी सी ज़रूरी बात है तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में ज़रूरी बातें समेटी जा सकती। अब इधर उधर की बातें कि फलाने की लड़की ने ये कर दिया, ठिकाने के घर में ये आफत आ गई, अब क्या ये सब है, हमें अपनी फिक्र होनी चाहिए, है ना। जैसे इनका फ़ोन मेरे पास आया, ठीक है क्या हाल है फरहान भाई, ठीक है, हाँ क्या काम है, ये काम है, ठीक है कर लिया, है ना। बस इतना सा हमारा मखलूक से ताल्लुक़ होना चाहिए। खाली वक्त को गनीमत जाने, है ना। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि मसरूफियत से पहले जो खाली वक्त मिले उसको गनीमत जाने। यानी आप अगर खाली बैठे तो मोबाइल की रील मत सरकाएं, गनीमत जाने, नबी पे दुरूद पढ़ लें, कलमा शरीफ पढ़ लें। ये तो मुश्किल काम नहीं है ना। कितना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा दुरूद पाक, है ना, सल्लल्लाहु अलैहि। क्लासरूम में आप लोग बैठे हैं तो नींद आ रही, क्लासरूम में बैठे हैं तो कभी घंटी खाली है, दोस्तों से फालतू बात करने से बेहतर है कि आप अपनी ज़बान को अल्लाह रसूल के ज़िक्र से तर रखें, कभी कलमा शरीफ पढ़ लें, कभी दुरूद पढ़ लें। और ये भी याद रखें, मिलाद करने के लिए तो आपको हमें बुलाना पड़ेगा, भाई मौलाना है तकरीर करेंगे, लेकिन दुरूद पढ़ने के लिए तो नहीं बुलाना पड़ेगा। अपने घर वालों को बैठाएं, अपने आसपास वालों को बैठाएं और बैठ के दुरूद पाक पढ़ लें। और अगर अभी भी ज़िंदगी आप हंसी मजाक और खेल तमाशे में गुजारना चाहते हैं तो फिर गुजारें, इसका कोई इलाज नहीं है ना, गफलत का कोई इलाज नहीं होता। यानी एक होता है ना, कुछ ऐसी तबीयत के मालिक लोग होते हैं जो बड़ी से बड़ी बात को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है ना। उन्हें बहुत कीमती बात भी बताई जाए तो हंसी मजाक में उड़ा देंगे, क्या रे छोड़, है ना। फिर ऐसे लोगों की हालतें तब्दील नहीं होती। और वैसे मुल्क में, दुनिया में जो मुसलमानों की हालत है, इतनी परेशानियां आने के बाद तो मुसलमानों को बदल जाना ही चाहिए। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, क्या मुसलमानों के लिए वक्त नहीं आ गया कि वो अपने रब की तरफ लौट आए। और अल्लाह ने कुरान में फरमाता है, ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह मत बनो जो अपने रब को भूल बैठे। उनका हाल क्या होता है, फिरौन की तरह, हामान की तरह, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत रखने वाले लोग हैं जिन्होंने ऐशो इशरत में ज़िंदगियां गुजारी हैं।
اللہ ताला के अहकाम के खिलाफ ज़िंदगी गुजारी, आप देखें उनकी हालत क्या हो गई, है ना। आपने यजीद के बारे में सुना है? यजीद बादशाह वक्त हुआ था, है ना। उसने क्या किया था? बंदरों का नाच कराता था, लड़कियों को नचाता था, शराब जुआ ये सब करता था। आज बताएं क्या कोई अदब के साथ उसका नाम लेता है? नहीं लेता ना। करबला के अलावा दुनिया की कोई ऐसी जंग है जहां शहीद होने वाला जीता हो? आप अपने फख्र से अपने बेटे का नाम हुसैन रख सकते हैं, कोई अपने बेटे का नाम यजीद भी रखता है? इतना जलील हो गया यजीद, क्यों? अपने बुरे कामों की बदौलत। हो सकता है जब वो ये सब कर रहा हो तो उसे बड़ा मजा आया हो। और कहा जाता है कि हमारे सूफिया तो कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक लम्हा मजा आता है, मजे नाच गाना आप करिए, एक लम्हा खूब मजा है कि नहीं। आप गप मोबाइल चलाइए, जब तक चलाएंगे खूब मजा आएगा, लेकिन आप कभी नेकी करके देखिए, कभी किसी गरीब की मदद कर लीजिए, आपको देखिए कितना सुकून मिलेगा। सिर्फ मदद करने में मज़ा नहीं आएगा, उसकी बरकत से आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। अब छोटे बच्चे हैं, इनको तो मदरसा भी पढ़ाते हैं हम लोग, तो अपनी बच्चियों को समझाते हैं कि बेटा पैसे से ही लोगों की मदद नहीं की जाती। कोई बूढ़ा आदमी है, पता चला उसकी चप्पल दूर रखी हुई है, तुम ला के उसके करीब रख दो, ये भी उसकी मदद है ना। कल मस्जिद में थे हम, तो बाहर आ रहे थे, तो मेरा आई कार्ड था वो नीचे गिर गया। तो एक सैयद साहब थे, वो बेचारे मज़ार शरीफ पे फातिहा पढ़ रहे थे, वो दौड़ के आए और मेरा आई कार्ड उठा के हमें दी। तो ये भी लोगों की मदद होती है ना, कि लोग मदद करें, है ना। और थोड़ा सा अपना मिजाज लोगों पे रहम करने वाला, लोगों पे शफकत करने वाला, आगे बढ़ के लोगों की मदद करने वाला बनाइए। और अपने बच्चों को भी सिखाइए। आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है कि वो काम नहीं करके आया या कॉपी पेन पेंसिल भूल गया, तो सारे बच्चे मिल के उसको फंसाते हैं, है ना। देखिए फलाने नहीं लाया, फलाने नहीं लाया। बल्कि कोशिश कीजिए कि जहाँ सब लोग लोगों पे जुल्म कर रहे हो वहाँ आप उसे बचा लीजिए। जनाब हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम लोग फरिश्ते थोड़ी। तो अगर किसी बच्चे से गलती हो जाए और आप उसका ऐब छुपा सकते हैं तो छुपाइए। हमारे अंदर कितनी बुराइयाँ हैं जो अल्लाह ने छुपा रखी है ना। तो हमें अपने ऐब, दूसरों के ऐब छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो दूसरों के ऐब छुपाता है, अल्लाह उसकी बुराइयाँ छुपा लेता है। कितने गुनाह हम करते हैं तनाइयों में, ज़रा याद करें और अपनी ज़मीर में झांक के देखें। अगर आपके माँ बाप आपके गुनाहों के बारे में जान जाएं तो आपके माँ बाप आपसे नफरत करने लगे, है ना। आपके दोस्त अहबाब जान जाए तो अपने साथ बैठाएं ना। इतने गुनाह हमारे खाते में हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने छुपा रखे हैं, और उसकी ज़ात से उम्मीद है कि वो क़यामत के दिन भी छुपाएगा, बल्कि माफ़ फरमा देगा। और कल मुफ्ती साहब बता रहे थे, साथ में थे हम लोग, कि जब इंसान गुनाह करता है ना तो फरिश्ते लिखते नहीं हैं, नेकी करता है तो फ़ौरन लिख लेते हैं, बल्कि इंतज़ार करते हैं कि मेरा अल्लाह ताला का हुक्म है कि 48 घंटे तक फरिश्ते इंतज़ार करते हैं कि ये बंदा तौबा कर ले। जैसे आपकी नमाज छूट गई, चले इंसान है, कभी नींद लग गई फजर में, होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी गलती से छूट गई, तो जब आप उठें तो फ़ौरन पहला काम ये करें कि वज़ू करके आप पहले कज़ा नमाज पढ़ें फजर, और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आइंदा मुझे इस गुनाह से। कभी कभी बंदा गुनाह करता रहता है और तौबा नहीं करता, जिसकी बदौलत उसका दिल सख्त हो जाता है और फिर वो गुनाही में सारी ज़िंदगी बिता देता है। तो मखलूक के साथ थोड़ा सा रवैया अच्छा रखें। कभी अपनी बहनों के पास बैठ जाया करें, प्यार से उनसे पूछा करें कि आप जैसे माँ बाप हैं, चले ठीक है हमारी पिछली नस्ल, आप भले पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं अंग्रेज़ी साइंस, घर में दादा दादी हैं, तो कभी उनको भी अपने छोटों को अपने पास बैठाना चाहिए, और हमेशा अपनी नहीं सुनानी चाहिए, कभी उनकी भी सुननी चाहिए। जैसे मैंने एक बार अपनी एक बच्ची को बुलाया और कहा कि आज क्या पढ़ा है तुमने, तो उसने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है तुम लोगों ने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने कहा कि ये होता क्या, हमको पता होता नहीं। वैसे हमें पता था, लेकिन हमने कहा ज़्यादा हमें नहीं पता है, तुम थोड़ा सा हमें बताओ। तो उसने बताया। अच्छा, बच्चे खुश होते हैं कि मेरी जो हम पढ़ रहे हैं वो मेरे माँ बाप के काम आ रही। कभी आप अपने बच्चे से पूछिए कुछ कि घर आज स्कूल में क्या पढ़ा है, चलें भाई साइंस पढ़ा है, तो साइंस में क्या पढ़ा है, तो आपका बच्चा बताएगा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, कभी गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, कभी कुछ भी पढ़ा है। तो आप अपने बच्चे से पूछिए ये हमें आता नहीं, तुम बताओ ये क्या होता है। कभी दादा दादी पूछ लें, कभी माँ बाप पूछ लें, इससे क्या होता है बच्चे थोड़ा आपके करीब होते हैं। और आज देखें मुसलमानों की बच्चियाँ, बहुत बड़ा अलमिया है ना कि मुसलमानों की बच्चियाँ गैरों के साथ भागें। कभी हमारे घर में बैठ के बात ही नहीं होती, बाप आता है तो गुस्से में अपने बैग फेंक के अपने मोबाइल में भिड़ जाता है ना। माँ आती है तो वो अलग मोबाइल में भिड़ी होती है, इधर बैठ जाओ। तो माँ होती है तो वो अलग मोबाइल में भिड़ी होती है, वालिद आते हैं तो वो अलग मोबाइल में भिड़े होते हैं। जबकि हमारा मिजाज ऐसा होना चाहिए कि कभी अपने बच्चों के पास भी बैठे
ان پہ بھی شفقت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. آپ بچی تو بچی چھوڑیں, ہمارے دین اسلام نے اتنا بڑا دل رکھا ہے کہ آپ بتائیں کوئی شادی کر کے کسی بچی کو لائے اور اسے کھانا پکانا نہ آتا ہو تو آپ دیکھیں گھر میں کیا ہوتا ہے, طلاق تک کی نوبت آ جاتی. ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کو سلائی کرنا بھی سکھایا ہے, برتن دھونے بھی سکھائے. آپ سوچیں, حضرت عائشہ کو گھر کے کام ان کے والد نے نہیں سکھائے, نبی علیہ السلام نے سکھائے. آپ جا کے پڑھیں, یہ تاریخ کا حصہ ہے. آج دیکھیں گھروں میں ساس بہو کو تانا دے رہی ہوتی ہے کہ ان کی اماں نے تو کچھ سکھا کے نہیں بھیجا, یعنی کچھ آنے جانے کا ڈھنگ نہیں. جناب نہیں بھیجا تو اب کیا ہوگا؟ اب ان کے ماں کے پاس تو بھیج کے آپ سکھائیں گی نہیں. آپ بھی ان کے ماں کی طرح ہیں, تھوڑی شفقت کریں, آگے بڑھ کے کام کرنا سکھا دیں. اور آپ سکھا دیں گی تو ان کے اماں کے کام نہیں آئے گا, آپ ہی کے زیادہ کام ہے نا. سکھانے میں کس کی بھلائی آپ بتائیں. آپ کی بیوی کو مثلا روٹی بنانی نہیں آتی, اگر آپ سکھا دیں گے تو ساری زندگی آپ ہی کو تو بنا کے کھلائے گی, ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑا سا اپنا مزاج نرم رکھیں اور ذرا سوجھ بوجھ سے کام لیں. ہمیشہ تشدد سے کام نہیں چلتا. اور دین اسلام یہ چاہتا ہے, قرآن مجید میں ہے رحماء بینہم, مسلمان جو ہوتے ہیں آپس میں بہت رحم کرنے والے ہوتے ہیں, بہت رحم کرنے والے. اب کسی کو کچھ نہیں آتا تو ڈانٹنے سے بہتر ہے. جیسے ہمارے وہاں اسٹیجوں سے چلایا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھو, تم لوگ کو تو ثنا پڑھنی نہیں آتی, قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں ہمیشہ اپنے بچوں سے کہتا ہوں, اگر تم نے, یا اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو تقریر کرنے والے دوست ہیں, کہ اگر آپ نے کسی کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا ہے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہیے کہ قوم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. پہلے آپ 2-4 لوگ کو سکھائیے, مدرسے کھولیے, اگر پھر بھی قوم نہیں آتی ہے تب آپ شکوہ کیجئے کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. مثلا ہر پڑھا لکھا شخص کہتا ہے کہ مسلمان قوم بڑی جاہل ہو گئی. جناب آپ پڑھے لکھے تھے, آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ آگے بڑھ کے 2-4 غیر پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھا دیتے. چلیں آپ نہیں پڑھا سکتے, اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, آس پاس پڑوس میں دیکھیے کون بچے نہیں پڑھتے ہیں, آپ ان کا داخلہ کسی اسکول میں کرا دیتے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کو لوگوں پہ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں. تو تھوڑا اپنا مزاج نرم رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ہے نا. دین اسلام چاہتا ہے آپ دوسروں کے لیے اپنے اخلاق اچھے رکھیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے وہ جنت میں نہیں جاتے بلکہ جہنم. اخلاق کا مطلب دوسروں کے ساتھ رویہ. بڑے بڑے نمازی حضرات اور حاجی حضرات جہنم میں چلے جائیں گے. کیوں؟ ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے. پتہ چلا اپنی اولاد سے اچھے سے نہیں بولتے تھے, اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرتے تھے. اور چھوٹوں کو تو ہمارے بڑوں نے اتنا ادب کیا ہے. ایک بار 2 بزرگ ایک ہی زمانے کے, دونوں عالم دین ساتھ میں چل رہے تھے. چلتے چلتے رستے میں پہلے نے دوسرے سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا اتنی ہے. تو انہیں پتہ چلا فلانے بزرگ مجھ سے 10 دن بڑے. کتنا دن بڑے؟ 10 دن. وہ ان سے فوراً پیچھے ہٹ گئے اور ان کے پیچھے چلنے لگے. تو پوچھا گیا آپ ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ تو بتایا کہ بڑوں کے ساتھ چلنا یا ان کے آگے چلنا یہ ادب کے خلاف ہے, بلکہ ہمیں بڑوں کے پیچھے چلنا چاہیے. آج ہماری اولادوں میں یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی. باپ بیٹھا ہو نہ بیٹھا ہو, اولادیں بیٹھی رہتی ہیں. بڑے بھلے پیچھے ہمارے, چھوڑو ہٹاؤ, ہمیں کھانے پینے سے مطلب ہے نا. وہ دھیرے دھیرے چلتے ہیں, کون ان کے پیچھے چلے گا. لیکن یہ سب ادب احترام کی چیز ہوتی ہے. مہذب پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, ہے نا. اور دین اسلام سب سے بڑی بات, آپ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہوں نہ ہوں, لیکن اگر آپ دین اسلام کے ماننے والے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہی پڑے گا. یہ آپ کی سماجی اور سوشل ایٹیکیٹ نہیں, بلکہ یہ آپ کی مذہبی ذمہ داری. یعنی آپ اپنے بڑوں کا ادب کریں گے نا تو اللہ آپ کو دنیا میں تو آپ سب کے محبوب بن جائیں گے. جیسے کوئی بچہ ہو جو اپنے بڑوں کی بات مانتا ہو, ادب کرتا ہو, تو ظاہر سی بات ہے بڑے اس سے محبت کریں گے کہ ہاں اچھا بچہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اتنے پیارے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ صرف آپ کو دنیا میں نہیں بلکہ آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے. آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے. آپ بتائیں, ماں باپ کا کہنا ماننے سے دنیا کے دوسرے مذاہب میں صرف ماں باپ خوش ہوتے ہیں. ہمارے وہاں فرمایا گیا کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی, اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی. یعنی اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے, ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہے نا. اتنا عظیم فلسفہ کسی مذہب نے دیا ہے. تو آج ماں باپ کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی طرف لائیں. یہ جو بے چینیاں سی ہیں, ہمارے پاس دولت بھی ہوتی ہے, ہمارے بچے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ہمارا ادب احترام نہیں کر رہے. ایک بے چینی سی, سب کچھ ہے ہمارے پاس. لوگ کہتے ہیں نا مسلمان ہے غربت مسلمانوں کے ایک طبقے میں, لیکن الحمدللہ ہم لوگ یہاں بیٹھے, اللہ نے 2 وقت کی اچھا کھانا کھاتے ہیں, اچھے گھروں میں رہتے ہیں. پھر بھی آپ سوچیں ہمارے اندر وہ سکون نہیں.
हम बेचैन हैं। क्यों बेचैन हैं? कि हमारे बच्चों के अंदर वो अदब एहतराम नहीं है। और ये एक बात, यहाँ से उठने के बाद हर शख्स कहता है ना, तुमने सुना है ना कि नमाज पढ़नी है तो कल से नमाज पढ़ना, तो आप कहिएगा मत, आप किरदारी तौर पे दावत दीजिए, यानी आप खुद नमाज पढ़िए। अब आप माँ बाप जब उठते हैं ना महफिल से, तो अपने बच्चों से कहते हैं, सुन लिए हो ना मौलाना साहब क्या कहे हैं, अम्मा अब्बा की बात मानना है आज के बाद। ऐसा ना करें, आप अपने हिस्से का काम करें। मौलाना साहब ने यह भी कहा है कि बच्चों पे शफकत करनी है, तो आप अपने हिस्से का काम करें, बच्चा खुद ब खुद आपका हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी आखिरी चंद बातें आपको बता दूं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, ये हमारे इमाम हैं, हम लोग इनके मुक़ल्लिद हैं। तो ये एक बार इनके मोहल्ले में एक शराबी रहता था, शराब पीता था बहुत ज़्यादा। तो वो शराब पी के शायरी पढ़ता, शराब पीने के बाद लोग गाना गाते हैं, शायरी पढ़ते हैं, वो अपने आप को बादशाह समझ लेते हैं। तो शराब पी के वो शायरी पढ़ता था कि मैं एक हीरा हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं समझता। तो रोज़ गाली बकता था कि इमाम साहब बेचारे रात में कुरान पढ़ रहे होते, वो बाहर से चिल्ला रहा होता। तो 2 दिन तक उसकी आवाज़ नहीं आई। तो इमाम साहब ने जाके पूछा लोगों से, कहाँ गया वो? तो बताया कि पुलिस वाले लेके चले। अब इमाम आज़म अबू हनीफा कौन है? जिनको 14 बादशाहों ने काजी बनने की दावत दी कि आप चीफ जस्टिस बन जाइए। कितने बादशाहों ने? 14 बादशाहों ने। आप कभी बादशाह के दरबार में नहीं गए, कभी भी आप बादशाह के दरबार में नहीं गए। इमाम थे वक्त के और बड़े लोगों से बड़े दूर रहते थे। कभी बादशाह, वो कहते थे मैं काजी नहीं बनूंगा और मुझे बादशाह के दरबार में नहीं जाना। आप उस शराबी के लिए बादशाह के वहां चले गए। अब बादशाह ने देखा तो हड़कंप मच गया कि अरे इमाम साहब, फलाने इमाम आजम आ गए। और वो ऐसे मोहल्ले गली के मस्जिद के इमाम नहीं थे, उनकी एक वक़्त थी अपने ज़माने में। 14 बादशाहों ने जिन्हें चीफ जस्टिस बनने की पेशकश की हो, आप सोचें वो कितने बड़े आलिम दीन होंगे। जब वो गए हड़कंप मच गई। लोगों ने सोचा लग रहा आज मान गए हैं काजी बनने के लिए, इसीलिए आए। तो जब बादशाह ने कहा आप क्यों आए हैं, आप एक हुक्म कर देते मैं खुद आपके घर आ जाता। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे मोहल्ले का एक शराबी था, तुम्हारे पुलिस वालों ने उसे उठा लिया, उसे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि आप लिख के दे देते तो मैं छोड़ देता। उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा आप आ गए हैं, इसलिए उस दिन जितने कैदी पकड़े गए थे मैं सबको आज़ाद करता हूँ। उसने कहा ठीक है तुम्हारी बात है, तुम जानो। इमाम साहब ने कहा लेकिन मेरा वाला जो है उसको लेने मैं खुद जाऊँगा जेल के बाहर। इमाम आज़म हैं, फरमाया मैं खुद जाऊँगा। वो गए और जाने के बाद जेल के बाहर जब वो आया तो उससे कहा कि तू कहता था ना मैं हीरा हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं समझता। अल्लाह की बारगाह में गवाही देना कि इन नोमान उनका नाम है, नोमान बिन साबित ने तेरी कदर की। इतनी मोहब्बत और शफकत गैरों पर, पड़ोसियों पर। अब बताएं, जब इमाम साहब ने उनसे कहा होगा कि बेटा आप शराब मत पीना, वो मना कर पाएगा? पहले एहसान कीजिए, उसके बाद नेकी की दावत दीजिए। हम तो चाहते हैं पहली मुलाकात में मिलें, जाओ ये करो वो करो फलाने काम करो। ऐसा नहीं, इमाम आज़म ने इतनी मोहब्बत की उस शराबी से, उसके बाद जब उन्होंने कहा होगा कि शराब मत पीना, वो मना कर पाएगा? इसी तरह आपने गरीब नवाज अलैहिर्रहमा का नाम सुना है, हिंदुस्तान में उन्हीं के दम कदम से दीन इस्लाम आया। वो एक किसान था उनके ज़माने में, वो भी बादशाहों के दरबार में नहीं जाते। घर में, हमारे बड़ों के घर में 2 दरवाजे होते थे, अगर बादशाह इधर से आते तो वो पीछे से बाहर निकल जाते। तो एक किसान था, उसको लेके वो अजमेर से दिल्ली चले गए। आज तो सफ़र आसान है, आप ट्रेन पे बैठे पहुंच गए या फ्लाइट पे बैठे पहुंच गए। उस ज़माने में सफ़र मुश्किल था। जब बादशाह के दरबार में पहुंचे, बादशाह हड़कम मच गई कि गरीब नवाज अलैहिर्रहमा आ गए। तो उसने कहा आप क्यों आए? तो कहा कि इस किसान का काम कर दो। तो उन्होंने कहा कि आप एक चिट्ठी लिख के भेज देते किसान के साथ, मैं कर देता। उन्होंने कहा चिट्ठी लिख के भेजता तो इसका काम तो हो जाता, लेकिन इसका दिल जोई तो नहीं होती ना। मैं इसका दिल रखने के लिए तुम्हारे पास आया। एक दूसरे की मदद का ऐसा जज्बा होता है ना। आज तो माँ बाप अपने बच्चों की फीस जमा करने नहीं जाते, स्कूलों में अपने बच्चों को छोड़ने नहीं जाते। आप जाएं, हम तो माँ बाप से कहते हैं कि आपको कम से कम एक बार तो स्कूलों में फीस जमा करने जाना चाहिए। आप जाएंगे तो कम से कम कुछ तो मिलेगा, आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। हम लोग मदरसा चलाते हैं, अपने बच्चों के हाथों लोग फीस भेज देते हैं, कभी नहीं आते मदरसों में, ये एक हकीकत है। तो हमें थोड़ा सा अपने अंदर चेंजिंग और बदलाव लाना चाहिए। पहली बात ये कि इबादतों का ख्याल रखिए, नमाजें पढ़िए, झूठ वगैरह जो मोटी मोटी बुराइयां हैं जो आपकी अक्ल जानती है बुरी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ रहे हैं कौन चीज़ अच्छी है कौन बुरी, उनसे बचिए। दूसरी बात, मखलूक के साथ अच्छा सलूक करिए। हमारे दीन ने तो ये भी कहा है कि हमें जानवरों पे भी रहम करना चाहिए, है ना।
تو تھوڑا اپنے گھر کے معاملے میں حساس رہی، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. نبی علیہ السلام کا جب دنیا سے جانا ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام نے 3 نصیحتیں فرمائی تھی. آخری بات، اس پہ بات ختم کروں. پہلی نصیحت یہ کہ نماز کی پابندی کرنا. دوسری نصیحت یہ کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جیسے آپ کبھی مستری پکڑ کے لاتے ہیں نا، پینٹ کرنے والا، یہ کیا کہتے ہیں، راجگیر مستری، تو ہم اس کے سر پہ کھڑے رہتے ہیں کہ وہ 1 منٹ بھی بیٹھے نا. ارے جناب، انسان ہی ہے، بیٹھ جائے گا کیا ہو جائے گا، ہے نا. تو فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا کبھی ان کے ساتھ کھانا کھا لیں. ہاں، کھانا کھا لے، پانی پی لے، تھوڑا سا اپنے طرف سے آپ کچھ اسے کھلا پلا دیں گے تو کچھ گھٹ نہیں جاتا، ہے نا. اور تیسری بات فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ عورتیں ہمارے پاس قیدی کے بمنزل ہیں، وہ ہم سے بھاگ تو نہیں سکتی نا. وہ ٹھیک ہے آپ انہیں گالیاں دیں، مارے پیٹے، رہیں گی تو آپ کے پاس ہی بیچارے. تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اچھا سلوک کریں. اور آج تو الٹا ہو چکا ہے، مردوں کے بجائے عورتیں جینا عاجز کر دیتی. تو میری گزارش میری ماؤں بہنوں سے بھی ہے، تھوڑا سا نرم سلوک رکھیں. اگر آپ، میں نے ابھی ایک مولانا سیف الدین اسد صاحب ہیں، انہوں نے کچھ برا بھلا کہہ دیا تو غلط کہا ہے انہوں نے، ایک دم ان کی غلطی 100%. تو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں رومی بھائی، سینٹرل اکیڈمی کے سینئر ٹیچر ہیں، تو ہم نے کہا آپ ذرا ان کو سمجھائیے. تو انہوں نے کہا دیکھیے ابھی سمجھائیں گے تو ابھی ساری دنیا والے ان کو گالی دے رہے ہیں، انہوں نے غلطی کی ہے، سب لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ابھی سمجھائیں گے تو وہ مانیں گے نہیں. جب تھوڑا معاملہ شانت ہو جائے گا تب میں ان کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے، ہے نا. ابھی سمجھائیں گے تو مجھ سے ہی دشمنی ہو جائے. تو اگر کبھی آپ کے شوہر آپ کو برا بھلا کہہ بھی جائیں، ٹھیک ہے صبر کر لیں، بعد میں انہیں سمجھا دیں کہ ایسا کہنا بہت برا ہے نا. ایسا کہنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کبھی ظلم نہیں کیا جاتا کسی کو، ہے نا، بلکہ ہماری تحریک کا تو پیغام ہے کہ آپ خدمت خلق کریں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام میں اپنی عورتوں کا ہاتھ بٹاتے تھے. آپ اپنے نبی کی سیرت پڑھیں اور ان کا کردار اپنائیں، آپ کا گھر جنت ہو جائے، ہے نا. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے کام، جیسے بیوی کبھی برتن دھل رہی ہے، ٹھیک ہے ٹھنڈ کا موسم ہے، آپ نے کھانا کھایا، اپنی پلیٹ خود سے دھل دیں. آپ کی مائیں دھلتی ہوں گی یا بڑی بہنیں دھلتی ہوں گی، آپ اپنی پلیٹ صرف خود سے دھل دیں. آپ دیکھیں کتنا بڑا بوجھ. اتنی ٹھنڈ ہے کہ لوگ وضو صبح سے شام تک چلا لیتے ہیں. فرحان بھائی کا وضو ظہر سے عشاء چلتا ہے کہ بار بار نہ کرنا پڑے. ٹھنڈی کا موسم ہے نا، بار بار کپڑے نہ اتارنے پڑیں. اس ٹھنڈی کے موسم میں ہماری مائیں بہنیں جو خدمات دیتی ہیں وہ کمال کی بات ہے. تو ہمیں تھوڑی سی ان پہ شفقتیں کرنی چاہیے، ہے نا. تھوڑا سا ان پہ رحم کا سلوک کرنا چاہیے. تھوڑا سا ان کے ساتھ، نبی علیہ السلام نبی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں حضرت عائشہ کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، جائز مذاق، ہے نا. فالتو ادھر ادھر نہیں کہ بیٹھ کے پکچر دیکھنے بیٹھ گئے، یہ سب نہیں. جائز مذاق کہ کبھی آؤ کچھ پڑھ لیتے ہیں کتابیں، کبھی کچھ باتیں کر لیں. کبھی عورتوں کو خوش کرنے کی ٹرک یہ ہے کہ ان سے ان کے مہکے والوں کے بارے میں بات کریں، ہے نا، وہ خوش ہو جائیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کتنی بڑی سائیکالوجی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں نا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں غالباً حضرت حفصہ بنت عمر، وہ مسکینوں کی بہت مدد کرتی ہیں، غریب لوگوں کی بہت مدد کرتی ہیں. تو انہوں نے ان کا نام رکھ دیا ام المساکین. کیا نام رکھ دیا؟ ام المساکین، مسکینوں کی ماں. اچھا، وہ خوب خوش ہو گئی. اب آپ دیکھیں اس سائیکالوجی کو سمجھیں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو پگلی کہہ کے بھی بلائیں گے نا پیار سے، وہ ناراض نہیں ہوگی. اور آپ غصے سے اس کا نام لے کے بلائیے تو دیکھیں، ہے کہ نہیں. اپنے بیٹے کو آپ پاگل کہہ دیجئے، کچھ بھی کہہ دیجئے، لیکن محبت سے کہیے، وہ ناراض نہیں ہوتا. لیکن آپ اس کا نام لیجئے غصے میں، وہ ناراض ہو جاتا ہے. تھوڑا اپنے اخلاق اچھے کیجئے. سب کے حقوق آپ کے اوپر ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے نیچے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ سے ڈرتے رہیے. اللہ نے اولاد دی ہے، خوشیاں منائیے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے بارے میں اپنی ذمہ داری بھی سمجھیے. بیویوں کے بارے میں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں، ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، ان کی خوب خدمات کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، تمام تر بری عادتوں سے اپنی حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے. آئے ہم مل کے اللہ کی بارگاہ